بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف احتساب عدالت میں توشہ خانہ 2 ریفرنس دائر، نیب ریفرنس 2 والیوم پر مشتمل ہے۔ رجسٹرار احتساب عدالت ریفرنس کا جائزہ لیں گے۔ اعتراضات دور کرنے کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج کو بھجوایا جائے گا، جو ریفرنس پر خود سماعت یا کسی دوسری احتساب عدالت منتقل کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹو جج احتساب عدالت ناصر جاوید رانا کی عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس زیر سماعت ہے۔ اڈیالہ جیل سے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 خواتین شامل، ایک سویپر، سی سی ٹی وی کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل۔ موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا تھا۔ کسی نے کہا بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ چاہتی ہوں ریلیف پورے ملک کے لوگوں کو ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا، کہا ریلیف شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد سولر کا بہت بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جو بھاری بلوں سے نجات دے گا۔ منسٹر صاحبہ کی تقریر سنی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں۔ اخباروں میں اشتہار چلا دیے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور ڈھول پیٹنا شروع کر دیا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھایا۔ نہیں چاہتے کہ آپ جس پچ میں ہمیں کھلانا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اس پچ میں آ کے جواب دیں۔ پیپلز پارٹی ایک صوبے کا نہیں ملک کا سوچتی ہے۔ ہماری سوچ ایک اشتہار تک محدود نہیں۔ پنجاب حکومت نے اخبارات میں اشتہار دے کر بجلی میں ریلیف کے ڈھول پیٹ دیے۔ ریلیف دینا ہے تو لانگ ٹرم دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب میں زیادہ سخت تقریر کر سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا نون لیگ تھرکول منصوبہ بند نہ کرتی تو توانائی بحران پیدا نہ ہوتا۔ سب سے سستی بجلی تھرکول سے ملے گی۔ تنازعات کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے۔ بتائیں پنجاب میں کون سے ایسے اسپتال ہیں جہاں سے مفت علاج ہوتا ہے؟ ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی۔ گورنر سندھ صوبے کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دلوانے کے لیے کوشاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ پنجاب کی طرح سندھ میں بھی ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مشورہ، کہا وزیر اعظم سے درخواست کی ہے وفاق سندھ کے لیے بھی کچھ مختص کرے۔ میرے اور حکومت سندھ میں کوئی مقابلے بازی نہیں، نہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلافات ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے۔ میں سیاسی نہیں عوامی گورنر ہوں۔ وفاق کو 20 سال کی صنعتی پالیسی کے لیے خط لکھوں گا۔ گورنر سندھ نے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ سب آئی پی پیز کی بینڈ ویگن کے اوپر چڑھ گئے۔ ہماری مدد ہوئی کانٹریکٹس کے اندر رہتے ہوئے اور آئی پی پیز کو کنونس کر کے اپنے ملک کے لیے بہتری کی طرف جانا ہے۔ آئی پی پیز سے متعلق خوشخبری دیں گے۔ خاموشی سے آئی پی پیز پر کام کر رہے تھے، خبر لیک ہوئی تو سب آئی پی پیز کی وین میں سوار ہو گئے۔ آئی پی پیز پر جو کام 3 ماہ میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا اس میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ توانائی کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے نئے پلانٹس لگانا ہوں گے۔ بجلی کی بچت کے لیے پنکھے کم واٹ پر منتقل کرنا اہم ہے۔ یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی، شین سے میم نکل جائے گی، لیکن یہ آج جو شین سے شکیل خان ہیں، یا عین سے عاطف خان ہیں، یا ہے سے حماد اظہر ہیں، جیم سے جنید اکبر ہیں، یا گاف سے گنڈا پور ہیں، یا شیر افضل مروت ہیں، یا زرتاج گل ہیں، یا علی محمد ہیں، یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے۔ اصل چیئرمین کے پکڑے جانے کے بعد اب خارج کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ ہمیں کہتے تھے شین میں سے میم نکلے گی، آج شین سے شکیل خان یا عین سے عاطف خان ہے، ہے سے حماد ہیں یا جیم سے جنید، یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے۔ ایک حرف 5 بار آئے گا لیکن پی ٹی آئی کے پرزے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں کے پی کے وزراء کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سہولت کار ہیں، بھتہ دے رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کا ٹولہ آپس میں لڑ پڑا ہے۔ جب سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا اس وقت سے پاکستان کھٹک رہا ہے کچھ گلوبل قوتوں کو۔ پلیز بی اویئر آف یور اینیمیز ود ان۔
मिसाइली कुव्वत होना, आपकी एटमी कुव्वत होना उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। चंद महीनों की बात थी, वही जो बदमाश कुव्वतें बैठी हैं कहीं और, उन्होंने आगे फिर आपसे नेगोशिएट करना था श्रीलंका के लिए। जब से पाकिस्तान बना है कुछ आलमी कुव्वतों को खटक रहा है। उन्हें मिसाइल और एटमी ताकत वाला पाकिस्तान कबूल नहीं। वो हमसे रिवायती जंग नहीं लड़ सकते। हमें मुल्क के अंदर दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क कभी नाकाम नहीं होगा। इस मुल्क से जो गद्दारी करता है अल्लाह पाक उससे हिसाब पूरा कर लेते हैं। मुल्क को दोलख करने वालों की नस्लें तबाह हो गईं। औलाद नरीना का भयानक अंजाम हुआ, एक की भी फितरी मौत नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक़ के एजेंडे में शामिल। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में तिजारती उमूर पर मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी हुकूमत के अखराजात कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शौरी इक़दामात की मंजूरी दी जाएगी। बरतानिया में फेक न्यूज पर एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर पुलिस ने लाहौर से फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मसूम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कालदम बीएलए के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द डिप्टी कमिश्नर पंजकोट जाकिर अली की शहादत समेत मुख्तलिफ वाकयात में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। दादू की तहसील जोही की एमएनबी ड्रेन में शगाफ पड़ गया, फसलें और मकान ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में भी सैलाबी रैलों ने 200 मकानात तबाह कर दिए। जाफराबाद में 70 देहात ज़ेर-ए-आब। जनूबी पंजाब में रोद को ही सैलाबी रैलों से तबाही। जामपुर में मकीन और माल मवेशी सैलाब में फंस गए। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। F6 सुपर मार्केट में गाड़ियों पर दरख्त गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं आज उधर भी जाऊंगा। हम अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। बरसाती नाले जब बह के आते हैं तो गांवों का रास्ता कट जाता है मेन रोडों से। खबरें देखता हूँ 60 देहात डूब गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत अपने लोगों को नहीं छोड़ती। बरसाती नाले बहते हैं तो देहात का सड़कों और शहरों से राब्ता कट जाता है, ये कोई नई बात नहीं। वज़ीर आला सिंध ने दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए ज़ेरे तामीर घरों का मुआयना किया। फराहमी और इख्तियारात न होने के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों का निजाम मफलूज है। खैबर पख्तूनख्वा लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमतों की आधी मुद्दत गुजर चुकी है। बल्दियाती निजाम गैर फाल है। पीटीआई ने तरमीमी एक्ट के जरिए बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात कम कर दिए थे, जिसके बाईस सूबे में अगस्त 2019 से अब तक अमलन मकामी हुकूमतों का निजाम मौजूद नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज किया और इख्तियारात के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। डीजीएसपीटी ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। इंटरनेट की सुस्त रवी और फायर वॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीक़ैन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है। इससे मुतालिक पीटीए से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और ब्रीफ कर सके। समाअत मुलतवी। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी दिफा और डीजीएफआईए ने कहा है कि दोनों उनके पास नहीं। जितने मिसिंग पर्सन्स हैं इस हुकूमत में हो रहे हैं, इतनी ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। कोई हेट स्पीच करता है तो कोई इससे कानून के मुताबिक निपटे।
हमें आइन और कानून देखकर फैसला करना है, जिसको उठाया है उस पर इखराजात भी तो आ रहे होंगे, उसका क्या जवाब है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। अदालत ने अजहर मशवानी के भाइयों से मुतालिक CCTV फुटेज तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। गुज़श्ता रात DI खान में हलाक 3 दहशत गर्दों की शनाख्त रंगीन खान, सद्दाम और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। हलाक दहशत गर्दों से भारी असलहा बरामद हुआ। CTD का कहना है हलाक दहशत गर्द रंगीन खान कलदम तंजीम का कमांडर था। दहशत गर्द DI खान पुलिस को मतलूब थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहिमी ताउन बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, इससे कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुलाकात में अफगान महाजरीन की देखभाल के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। नीदरलैंड्स की सफीर ने मोहसिन नकवी को सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी कुर्बानी की रोशन मिसाल। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। सदर आसिफ जरदारी, मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ का राशिद मिन्हास शहीद को भरपूर खराज अकीदत। 71 की जंग में मुल्की दफा के लिए राशिद मिन्हास ने गैर मुतजलजल बहादुरी का मुजाहरा किया। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा कौम को राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर फख्र है। कौम शहदा की एहसानमंद और उनकी कुर्बानियों को याद रखेगी। मोदी सरकार वहशी दरिंदों को लगाम ना डाल सकी। मुंबई में 2 बच्चियों के साथ स्कूल में ज्यादती। सफाई करने वाले लड़के ने 4 साल की 2 बच्चियों को हवस का निशाना बनाया। पुलिस ने 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। वाकये के खिलाफ लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर धरना, मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल को खौफनाक जुर्म करार दे दिया। भारतीय चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये एक केस नहीं, भारत में डॉक्टर्स की हिफाजत का मसला है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए कौमी टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। अस्पतालों में डॉक्टर्स को बेहतर सहूलतें फराहम करने का भी हुक्म। अदालत ने CBI को वाकया और इसके बाद हंगामा आराई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। भारतीय चीफ जस्टिस की डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इस्राइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसराइल का गजा में जंग बंदी की तजवीज से इत्तेफाक। हमास का इसराइल की नई शराइत मानने से इनकार। कहा बैनुल अक़वामी बिरादरी इसराइल पर बाइडन की जानिब से दी गई तजवीज पर अमल दरामद कराने के लिए दबाव डाले। मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका इसराइल को नस्लकुशी जारी रखने के लिए वक्त दे रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्र पहुंच गए। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज का कहना है खान यूनिस से 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। मुनासिब वक्त पर इसराइल को इस्माइल हनिया के कत्ल की सजा देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के डेप्यूटी कमांडर अली फदवी का कहना है बच्चों के कत्ल में मुलव्वस इसराइली हुकूमत ने ईरानी सरजमीन पर इस्माइल हनिया को शहीद किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा नासिर कनानी कहते हैं गजा जंगबंदी का इसराइल को जवाब देने से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में सियासी तशद्दुद की गुंजाइश नहीं। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से सदर बाइडन का खिताब। स्टेज पर आप दीदा हो गए। खिताब में कहा हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, जमहूरियत गालिब आएगी। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे, किया कुछ नहीं। आज ट्रंप दौर की निस्बत अमेरिका ज्यादा महफूज है। कामला हैरिस का 4 सितंबर को मुबाहिसे से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कामला हैरिस के इस रवैये से हैरान नहीं, उन्होंने इसलिए मुबाहिसे से इनकार किया क्योंकि इन्हें अपना दिफा करना मुश्किल लग रहा है। कामला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान कौमी टेस्ट टीम शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेले। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट कामयाबी के लिए पुरअज़्म। 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। 1 ओवर में 39 रन क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। समवा के बल्लेबाज एरिस विज ने T20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक के क्वालिफाइंग राउंड में कमाल कर दिया।
एक ही ओवर में 39 रन बना दिए। ओवर में 6 छक्के लगाए, 9 बॉल से भी रन आए। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी फाइटर्स की धूम। पाकिस्तान के अब्दुल मन्नान ने किर्गिस्तान के फाइटर को शिकस्त दे दी। अब्दुल मन्नान फाइट के दौरान हरीफ खिलाड़ी पर हावी रहे और तीसरे राउंड में कामयाबी हासिल की। दूसरी फाइट में ज़ीशान अकबर भी कामयाब, किर्गिस्तान के फाइटर को आउट क्लास किया।